So hello guys, and this is my second video, and इस वीडियो में I will be sharing my prelims and mains scorecard with you. So without wasting any time, let's start the video. So as you can see that this is my prelims scorecard, and starting from 2016 attempt, my first attempt, I scored these are my GS marks, and these are the cutoffs of those respective years, and these are my CSET marks. Now coming back to 2016 attempt, as you can see I was very ill prepared, so very low marks. You can see almost 40 marks gap is there between my marks and the cutoff for that year, which was around 116. And in the CSET I scored 102 marks, which was fairly good at that time. So coming to my 2017 attempt, then my second attempt, and here you can see there is a big jump of marks, and I have scored 107 marks in GS, and the cutoff was 105. So by the margin of 2 marks I cleared that year prelims. And as you can see that there was a dip in my marks in CSET, and here I scored I'm not so I misplaced my mark sheet, so it was around between 78 to 82. So there was a dip in my marks. I don't know the reason. At that time I didn't know the reason, but अभी मैं जानता हूँ कि वो marks कम क्यों हुए इतने. So coming to my third attempt in 2019, which according to me is my worst attempt, you can see there is a dip of marks, and it is a lot. 18 and 7, around 25 marks I lost in comparison to my last prelims score. And you can see the cutoff is also declining, but still my marks were very low, and my CSET marks remained similar to my previous attempt. And I will tell you later why this dip occurred in my marks in the later part of the video. Then came my 2020 attempt, which was my last attempt which I gave in 2020, and here you can see again there is a jump of marks around 25 from my last attempt, and cutoff further sliding down to 92.5. And the most worrisome thing about that year's result was my further decline in marks of CSET. CSET में फिर से 10 मार्क्स और कम हुए, एंड मैं फिर से जो अपना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 66.633 या 66 जो भी है उतने मार्क्स का रहता है. सो बाय यू कैन सी दैट बाय मार्जिन ऑफ अबाउट 1.3 marks I was able to clear the CSET cutoff, but it is risky, and this is a trend which can be seen nowadays. And I will tell you, most of you will be knowing it, but I will tell you that कि इसका क्या रिलेशन है CSET का इस कट ऑफ को लाने में. सो बट बिफोर दैट लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये मेरा प्रीलिम्स 2020 का स्कोर कार्ड है, एज यू कैन सी. So now coming to my mains marks. So as I have told earlier in my first video, मैंने 2017 और 2020 2020 and 2017 में I have given 2 mains. So these are my marks in those years. So as you can see, essay में I scored 135 in my first attempt, and they declined to 119 in 2020. GS 1, 2, 3 and 4 you can see more or less same. There was a dip in GS 2. GS 3 I scored most marks in 2017, but in 2020 there was again a dip. Coming to GS 4, ethics. So ethics में I scored 79 marks that year, because
आई थिंक मुझे उतना आइडिया नहीं था एथिक्स के बारे में, ज़्यादा मैंने तैयारी भी नहीं करी थी। पेपर मेरे को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन that didn't showed in my marks. So there was a spike in my marks in 2020. And now coming to my optional, that is geography. So in 2017 these were my marks: 131 in paper 1 and 130 in paper 2. Combined they were 261 marks out of 500 in my first attempt. And coming to my second attempt at mains, I scored 127. So there was a dip of 4 marks and 132 gain of 2 marks. So cumulatively I scored 259 marks out of 500, which cumulatively resulted in decline of 2 marks. So these were my final marks, 787. ये मेरा फाइनल स्कोर था 2017 में मेंस में, और 2020 में 752 मार्क्स थे मेरे टोटल. और दिस इज़ माय मार्कशीट for 2020 attempt. And that year I also gave interview where I scored very less marks, 140 marks in my interview, जो मुझे उस समय देखने पर लगा था कि काफ़ी ज़्यादा कम है और समझ में नहीं आया कि इतने मार्क्स कम क्यों मिले. बट अब मैं जानता हूँ कि मुझे कम मार्क्स क्यों मिले, क्योंकि बहुत बेसिक ब्लंडर्स करी थी मैंने अपने इंटरव्यू में, जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि मैंने क्या गलतियां करी, व्हाट ब्लंडर्स आई कमिटेड एंड व्हाट मिस्टेक्स आई डिड विच कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड. सो later on that part. So this was my scorecards in prelims and mains for 4 years for prelims and 2 years for mains. So coming back to what is my analysis of these mark sheets is that prelims में अगर मैं बात करूँ prelims की, तो prelims में मेरा GS का स्कोर अगर आप देखें तो पहले लो था, फिर स्पाइक हुआ 107 में, फिर लो गया 82 तक और फिर स्पाइक हुआ 107 में. इससे मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, that if you study then it will pay off, it will definitely pay you, because इसमें मेरी तैयारी नहीं थी तो मेरे मार्क्स कम थे, इधर मैंने प्रिपरेशन करी तो मेरे मार्क्स बढ़े. And I also passed through the prelims stage. Now coming to third attempt, मैंने फिर से बहुत सारी गलतियाँ करी जिसकी वजह से मेरा स्कोर डिप हुआ, और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि I was not studying properly at that time. So there was a dip in my marks. Again in 2020 I seriously studied and you can see a jump of marks. So the thing that I can easily say about it कि अगर आप पढ़ते हो, अगर आप ढंग से तैयारी करते हो प्रीलिम्स को देख के, हर चीज़ को एनालाइज करके, स्टडिंग विल ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज इन मार्क्स. ऐसा नहीं हो सकता कि आप पढ़ भी रहे हो सही तरीके से और आपके मार्क्स ना पढ़े. दूसरा मेरा एनालिसिस जो निकल के आया वो ये सी सेट में आई स्टार्टेड फ्रॉम 1 or 2 marks and I almost reached to the state where I could have failed the CSET exam, and my final score was in 2020 was 67.50. So इसके बारे में I would like to say one thing, that CSET is now it is not getting tougher. It is not tougher, but the thing is people are practicing it very less. So including me, मैंने भी इसकी बहुत कम प्रैक्टिस करी थी, और यही वो कम प्रैक्टिस है, या फिर मैं बोलूँगा कि सिलोस में प्रैक्टिस करना, कि हमने किसी एक टॉपिक को पढ़ लिया या कुछ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लिए, 10-5 क्वेश्चन करके और हम सोच रहे हैं कि हमारा CSET की प्रिपरेशन पूरी हो गई. बट एक्चुअल पेपर में इट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बिकॉज आपके पास कॉम्प्रीहेंशन भी होता है. कॉम्प्रीहेंशन के बाद यू हैव टू डू क्वांट एंड देन रीजनिंग. तो
उसको इन सब चीज़ों को 2 घंटे के अंदर में करना, इट बिकम्स अ चैलेंज। तो उस वजह से क्या होता है कि एक्चुअल पेपर में यू पैनिक, एंड व्हेन यू पैनिक देन जो नॉर्मल क्वेश्चंस भी हो रहे होते हैं वो भी आपके गलत हो जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, और आई थिंक मैंने बहुत से ऐसे लोगों से भी बात करी है, सबके साथ ऐसा होता है। तो बात असल में ये है कि इतने सारे सालों से ऑफ लेटली इसके बारे में ज़्यादा बातें होती हैं, मतलब हमारे जीएस के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। एवरी टॉपर, every person who has qualified prelims is talking about GS only, and they neglect CSET because they qualified na CSET. I also never failed in CSET, but if I am getting lower marks, I should know कि उसका रीज़न क्या है। तो लोगों ने इसको नेगलेक्ट कर दिया। जीएस को वो अच्छे से बताते हैं स्ट्रेटजीज़ को, लेकिन सीसेट को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो वही हमें नहीं करना है। एंड इफ़ यू कैन सी कि जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है वो हर ईयर गिरता जा रहा है। 21 में आई डिडंट गिव द अटेम्प्ट, बट द कट ऑफ वाज अराउंड 87-88 आई थिंक। सो इतना ज़्यादा अगर कट ऑफ गिर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि लोग जीएस नहीं पढ़ रहे हैं या उनको जीएस नहीं आता है। उसका सीधा एक ही मतलब है कि ऐसे लोग जो 112, 130 तक भी स्कोर कर रहे हैं जीएस में, वो सीसेट में फ़ेल हो रहे हैं। और उनके फ़ेल होने की वजह से जो बच्चे सीसेट में पास हो रहे हैं और उनके जीएस के जो स्कोर हैं वो रेंज में हैं 98 से 88 के, इस वजह से कट ऑफ इतनी कम रह रही है। तो माय फर्स्ट एनालिसिस इज़ ये कि आप अपने सीसेट पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जीएस में अब बहुत सारी ट्रिक्स आ गई हैं। एलिमिनेशन इज़ देयर, एलिमिनेशन है, और भी कई सारी ट्रिक्स हैं जो यूट्यूब पे और सॉरी फॉर डैट, यूट्यूब पे और हर जगह अवेलेबल हैं। बट सीसेट में ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं है। तो सीसेट में आप अपना पूरा ध्यान दें जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ 2023 अटैम्प्ट में भी यही होने वाला है कि पीपल विल बी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट विल बी स्टडिंग फॉर जीएस ओनली एंड दे विल बी नेग्लेक्टिंग सीसेट। सो कट ऑफ में रिमेन आइदर 88 टू 98, इतना ही मुझे लगता है। इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से अब। बट ये डिसाइड करेगा, सीसेट विल डिसाइड एवरीथिंग कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो 2023 के लिए मैं अगर आपसे बोलूँगा कि ये अब 1 Feb को अपना नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उससे पहले जो भी सीट्स रहेंगी अभी जैसा भी होगा, पर जहाँ से जहाँ तक है इतना ही रहेगा। और लगभग अभी 4 मंथ हैं आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई करें। दैट यू ऑल्सो इंक्लूड सीसेट इन योर प्रिपरेशन इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। ऐसे नहीं कि आप सिलोज में पढ़ रहे हो, क्योंकि सिलोज में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इफ़ यू डू 5 or 10 क्वेश्चंस एंड यू फील गुड अबाउट इट, सो इट विल नॉट बी हेल्पिंग यू। सो नाउ कमिंग टू मेंस में अगर मैं अपना कोई एनालिसिस दूं तो ये कि सबसे पहला एनालिसिस तो ये है कि नेवर कंपेयर योर मार्क्स फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर ईयर, क्योंकि उससे कोई एक्सपेक्टेबल कोई पॉइंट ऐसा नहीं निकल के आने वाला। क्योंकि इफ़ यू कैन सी 2017 में मेरा फाइनल स्कोर 787 था और 2020 में इट वाज अराउंड 752। तो आप देख सकते हैं देयर वाज अ डिप, बट इधर डिप नहीं था पर फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आई डिडंट क्लियर मेंस, बट इधर मेरा स्कोर कम है पर फिर भी आई क्लियर मेंस, क्योंकि कट ऑफ गिर रही है। तो ये भी एक बात है कि मेंस की कट ऑफ भी अब लगातार गिर रही हैं कट ऑफ्स। तो उसका भी रीज़न क्या हो सकता है क्या नहीं, उसके बारे में तो मैं अभी ज़्यादा नहीं जानता, बिकॉज इट कैन बी हार्ड चेकिंग और द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट दैट आर गिविंग मेंस, वो भी शायद हैम्पर हुई है। एंड आई जनरली डोंट नो, बट हाँ, पेपर अगर टफ बोलें तो आई थिंक 2 ही ऐसे पेपर हैं, वन इज़ ऐसे एंड वन इज़
एथिक्स, जिसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ हुआ है पेपर्स का। ये लेंदी बन गए हैं और ये ऐसे दोनों, पहले एक फ़िलासफ़िकल आता था, अब आजकल मोस्टली जो दोनों टॉपिक्स हैं वो फ़िलासफ़िकल आ रहे हैं ऐसे के। तो ये भी कारण हो सकता है मेंस के मार्क्स गिर जाने का। और अगर आप मुझसे पूछें या मेरे जैसे कई लोगों से पूछें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि when we get out of our examination hall and when we feel that a particular subject we have done very good, कि इसमें तो हमारे मार्क्स पक्का अच्छे आएंगे, और when we have a feeling कि यार ये पेपर तो बिगड़ गया, यानी कि वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं गया है, तो अगर उसमें आपकी बैड परफॉर्मेंस है तो आप देखेंगे जब आपके मेंस के मार्क्स आएंगे जिसमें आपने सोचा था आपका अच्छा पेपर गया है, यू विल बी स्कोरिंग लो इन दैट पेपर्स, एंड जो आपने सोचा था कि बुरे गए हैं वो उसमें यू विल बी गेटिंग हायर मार्क्स। सो ये मेरे साथ भी हुआ है, एंड मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बात करी है, उनके साथ भी अक्सर होता है कि जो आप सोचते हो। तो 2017 में मेरा एथिक्स का पेपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ था, और कॉन्ट्ररी टू सेट नॉर्म्स मेरा वो पेपर करीब 8 मिनट पहले हो गया था, तो मुझे लगा सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे उसी में आएंगे, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बट आफ्टर सीइंग माई स्कोर कार्ड आई रियलाइज्ड दैट नहीं, सबसे कम मार्क्स उसमें आए थे मेरे। एंड द वर्स्ट पेपर अकॉर्डिंग टू मी वॉज माई GS3 पेपर, क्योंकि उस साल ही, अगर आपको पता हो, पैटर्न चेंज हुआ था 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स आने का। तो उसमें जो 15 मार्कर्स थे उसमें से मुझे 3 क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो आप अपना हिसाब लगा सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस मतलब 45 मार्क्स का पेपर मेरे लिए एक तरीके से, मैं ये तो नहीं बोलूँगा फुली, बट इट वाज पार्शली अनअटेम्प्टेबल फॉर मी। सो कीपिंग दैट इन माइंड, मुझे लगा कि ये पेपर मेरा सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है। बट you can see on the contrary I scored 114 marks in GS3, which were highest for me. And so this is one of the analysis for means. And second analysis if I can think of is that means का पेपर अब और ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें हम ज़्यादा चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमें जो करना चाहिए रिक्वायर्ड, हम उस चीज़ को नहीं प्रैक्टिस करते हैं। PYQs वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर हम ये नहीं पता लगाएंगे, क्वेश्चंस आर रिपीटिंग इट्स, हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप चाहे उसको GS1 में देखो, 2 में देखो, 3 में देखो, ये थोड़े डायनेमिक ज़रूर हैं लेकिन इनमें भी थीम्स आर रिपीटेड। जब थीम्स रिपीट हो रही हैं तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, तो वो हम प्रिपेयर ढंग से नहीं करते हैं। एंड सेकेंड इज़ ऑप्शनल। ऑप्शनल में भी हम अगर देखें तो मेरा स्कोर 261 से 259 हो गया। उस साल का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे वो 320 मार्क्स बाय प्रथम कौशिक सर। आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल, शायद उन्हीं के थे, प्रथम कौशिक सर के। और 259 इस साल थे 2020 में। उस साल मुझे पता नहीं है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ इट वाज अराउंड 289 मार्क्स जो सबसे हाईएस्ट थे। तो अगर आप यहाँ देखो कि यहाँ सिर्फ 30 मार्क्स का गैप है मेरे मार्क्स में और जो टॉपर उस साल के जो थे सब्जेक्ट के, और इधर बहुत ज़्यादा अंतर था। तो आज के टाइम में भी जो एक एवरेज निकल के आया है वो ये है कि इफ़ यू आर स्कोरिंग इक्वल टू और ग्रेटर देन, आई विल से 280 मार्क्स, तो आपका ऑप्शनल सिक्योर है। इतने मार्क्स लाना इज़ इनफ टू क्लियर मेंस एंड गेट सेलेक्टेड। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर this particular video for prelims and mains. So I will be coming with more analysis especially with respect to my optional geography in my coming videos. So